a platform like this and a party like this is necessary. The idea is to give a singular platform where people of the Northeast and different political parties can come together and be a one voice for the people of the Northeast. Regardless of any religion, regardless of any ethnicity, if we feel that the rights, the constitutional rights of the people are being violated, we will stand up for that. घुमा चढ़ाकर एक ही सवाल आता है कि आप किसके विरुद्ध हैं? हम लोग अपने लोगों के पक्ष में हैं. And I think what Northeast needs today is articulation and cohesiveness. And for that, this entity is being formed. नॉर्थ के प्रमुख नेता जिसमें मेघालय के चीफ मिनिस्टर और नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट कॉनराड सांगमा, टिप्रामोठा के फाउंडर बुबाग्रा और नागालैंड की फॉर्मर मिनिस्टर होंगलुमु किकोन शामिल है. 4 नवंबर 2025 को एक साथ आकर नया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म वन नॉर्थ ईस्ट का अनाउंस किया. इसका एम है कि पूरी रीजन को नेशनल लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग और यूनिट आवाज मिले. नेशनल कैपिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए कॉनराड सांगमा ने इसको एक कलेक्टिव और हिस्टोरिक मूवमेंट बताया. उन्होंने अनाउंस किया कि 9 मेंबर पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाई जाएगी जो आने वाले दिनों में इस नया प्लेटफॉर्म का रूट मैप और डिटेल्स तय करेगी. Your input will be, it's not about only politics, please remember. It's about ensuring that wherever we find that there is a concern or an issue for anybody from the Northeast, somehow or the another, when it is a person from Meghalaya, though we in our heart we feel, "Arey yaar, ye kya ho raha hai?" but we don't know what to do, what to say, or who to approach. If somebody happens to be, some issue happens with somebody from Arunachal, then we'll have find the Arunachal people talking. But then there is a space, there is a vacuum, there is a need for a platform that is going to be talking about the Northeast. So you can imagine when, professionals like you, others, officers, others who are individuals who would like to see some kind of a platform, we are hopeful that we'll be able to provide that, and this committee that we have set up is mandated to approach individuals who would like to associate with the party and other political parties who would like to merge and work with this new entity that we're going to create. लीडर्स ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म का कोर एजेंडा होगा लैंड राइट्स. पड़ोसी देशों से इलीगल माइग्रेशन का मुद्दा, 6 शेड्यूल की प्रोटेक्शन और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ होने वाली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना. What is our issues across Northeast? Daniel Langthasa is fighting for protection of 6th schedule. We are fighting for the protection of 6th schedule. There are common problems of illegal migration happening from neighboring countries, alienation of tribal land. अच्छा, दिल्ली में अरुणाचली हो, दिमासा हो, गारो हो, नागा हो, त्रिपुरी हो, मिजो हो, बहुत जगह में हमारे लोगों के संग दुर्व्यवहार किया जाता है. अगर सिर्फ चाकमासी जाके चाकमास के बारे में बात करेंगे, मिजोजी जाके मिजोस के बारे में बात करेंगे, तिपरासाई जाके तिपरासा या नागा, तो हमारी आवाज़ जो दिल्ली में है, हमारी संख्या कम है, बेंगलोर में संख्या कम है, तो हमारी आवाज़ कभी कभी सही जगह में पहुंचती नहीं है. सो दिस is where our students suffer. There are many professionals who are from the Northeast. There are many lawyers who are from the Northeast who again want a platform where they want to talk. That's why Kondar Sangmaji has told them that you are most welcome to join us. There are many journalists who are from the Northeast who sometimes feel that they are not being heard or they are being profiled. And I think it is our job as leaders from the Northeast to come together and articulate that. That was your question. Which are the common points? We all know that many of the people across, many of the Vidwans and intellectuals cannot name 7 or 8 Northeast capitals. And I think it is very important that we also ask the government of India, whosoever is there, to ensure that there is a chapter in the Northeast. Because when I meet some of the most intellectual and wise people, they do not know enough about the Northeast because it is not taught. Students, study books, curriculum does not have chapters in the Northeast. So I think respect is a two-way street, and if we can speak and come together, it will make sense. वन नॉर्थ ईस्ट का फॉर्मेशन रीजनल पार्टीज के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने और नेशनल पॉलिसी मेकिंग में रीजनल की कलेक्टिव आवाज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया गया है.
लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि ये अलायंस आगे कैसे इन्वॉल्व होता है। इसी दौरान लीडर्स ने ऑप्टिमिज्म भी एक्सप्रेस किया कि ये इनिशिएटिव नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिकल एंगेजमेंट को देश की बाकी हिस्सों के साथ नया तरीके से शेप कर सकता है। लेकिन त्रिपुरा मोर्चा के फाउंडर और रॉयल परिवार से आने वाली बुबाग्रा ने 13 अक्टूबर को कहा कि उनकी पार्टी अब 2028 की इलेक्शन में त्रिपुरा को एक इंडिजिनियस कम्युनिटी से चीफ मिनिस्टर देने पर फोकस करेगी। बुबाग्रा ने अगरतला में एक पार्टी ज्वाइनिंग प्रोग्राम के दौरान ये बात कही, जहां इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगी ताकि स्टेट लीडरशिप और रीजनल रिप्रेजेंटेशन को मजबूत किया जा सके। उस टाइम बुबाग्रा, जिनकी पार्टी बीजेपी लेड गवर्नमेंट की कोalition पार्टनर है, नेशनल पार्टीज पर यह भी आरोप लगाया कि उनमें लोकल इशू को एड्रेस करने के लिए पॉलिटिकल विल की कमी है। उन्होंने बुतुलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इलेक्शन का एग्जाम्पल दिया, जहां हग्रामा महिलारी के नेतृत्व वाली बुतुलैंड पीपल फ्रंट ने जबरदस्त जीत हासिल की और 46 में से 28 सीट जीती है। आप लोग जानते हैं बुतुलैंड का इलेक्शन हुआ था, हाँ कि नहीं? ना मैं बीपीएफ के लिए कैंपेन करने के लिए जा रहा था, हंग्रामा के लिए। तो बहुत लोग हमको फोन किया, बड़ा बड़ा लीडर लोग ने फोन किया, महाराज आप चाहिए मत हंग्रामा के लिए कैंपेन करने के लिए, लोग नाराज हो जाएगा, मत कीजिए कैंपेन हंग्रामा के लिए। लेकिन मैं किया और आज मैंने कैंपेन किया हंग्रामा के लिए, अरे खुल्लम खुल्ला कैंपेन किया। आज बीटीसी में 40 सीट से 28 सीट बीपीएफ लेके आया और त्रिपुरा मोर्चा उनके साथ खड़ा है। और जो लोग ने फोन किया, वो लोग थानसा नहीं चाहता था बिटवीन प्रमोद बोरो, अंजलि दाइमारी और हंग्रामा। ये लोग डिवाइड एंड रूल करके पीछे का रास्ता से दे वांटेड टू एंटर बोडोलैंड। लेकिन बोरो पीपल भी समझदार हो गया है, पहले ऐसा नहीं रहा, सब समझदार था, सब जानता है। जवाब दिया और जगदीश बाबू अब बोला था ना, नाम नहीं लेके, वर्ल्ड्स बिगेस्ट पार्टी बोडोलैंड में स्मॉलेस्ट पार्टी है। आज आप वर्ल्ड्स बिगेस्ट पार्टी बन सकता है। इप्रासा एरिया में बिगेस्ट पार्टी बनना है ना, तो दिल बड़ा करना चाहिए। इनका दिल चिकन है, तो इन लोगों का कोई चांस नहीं। लेकिन मैं आज भी आईपीएफटी को बोलता हूं, मैंने देखा बोडोलैंड में क्या हुआ। आप मुझसे मिलो, मैं भी 2021 से अभी तक बहुत सीख चुका हूं, और अगर थानसा करना है तो आओ बुबाग्रा के पास, बुबाग्रा रेडी है, हम लोग थानसा करेगा और 28 सीट से 28 सीट जीत के, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य त्रिपुरा मोर्चा आईपीएफटी नहीं है। हमारा लक्ष्य है 2028 में 75 ईयर्स के बाद दशरथ मुख्यमंत्री बना था, अब हम लोग त्रिपुरा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस इवेंट में 1000 से ज्यादा लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से त्रिपुरा मोर्चा में शामिल हुए। इस प्रोग्राम में पार्टी की सीनियर लीडरशिप भी मौजूद थे, जिनमें प्रेसिडेंट बी.के. रंखवाल, मिनिस्टर अनिमेश देबबर्मा और बिरसाकेतु देबबर्मा और टीटीए एडीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर पूर्ण चंद्र चौमातिया भी शामिल थे। और इसी 2026 में भी एडीसी इलेक्शन में त्रिपुरा मोर्चा ने 24 सीटों से जीत हासिल किया है। और अगर आने वाली 2028 में अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट देते रहेंगे, जो शायद बुबाग्रा की सपना पूरा हो सकता है। नमस्कार, मैं राहुल, आप देख रही है .28 कैपिटल्स। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।